बोलिए। अभी पुलिस प्रशासन से बोलता हुआ हम तो थोड़ा बहुत हमारे आदमी तो 2 साल हुआ बुझा दिया। अभी थोड़ा बहुत दुकानदारी करता हूँ, देखिए ना सब पूछ के ले गया, सिगरेट फिगरेट गुटखा फुटका सब ले गया। ऐसे हम सारा दिन बैठ के कुछ नहीं जाता हूँ, थोड़ा बहुत बिक्री करता है, ऐसे सुन करके सब ले गया, ताला उला तोड़ के। टका पैसा भी था, थोड़ा बहुत 1000-1200 रुपये था, वो भी ले गया। थोड़ा बिक्री करता हूँ, माल करता हूँ, फिर पैसा पूरा ले गया। नमस्कार दोस्तों, खबर समय की टीम पहुंची हुई है आज हैदरपाड़ा के शरत चंद्रपल्ली में, और यहाँ पर एक ही रात में 5 घरों में चोरी की घटना घटी है। तो सोच सकते हैं कि किस प्रकार सिलीगुड़ी शहर में चोरों का उत्पात बढ़ गया है, कितनी दुस्साहसिक चोरी हुई है कि एक ही मोहल्ले में चोर आते हैं और 5 घरों में चोरी का प्रयास करते हैं या फिर चोरी करते हैं। और साथ ही आपसे बता देते हैं, जैसे स्थानीय लोगों ने हमें बताया है कि चोरों ने चोरी तो की ही, साथ ही घर के लोग बाहर न निकल सके, चिल्ला न सके, इसके लिए उन्होंने घर के दरवाजों को भी बाहर से बंद कर दिया था। तो आइए, क्या है पूरा मामला और कहां चोरी हुई, क्या कहना है जिन लोगों के घर में चोरी हुई उनका, ये पूरा मामला जानते हैं। तो दोस्तों, जिन 5 घरों में चोरी हुई है उनसे पहले में हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, ये मिथुन पाल है जिनके घर में रात में चोरी हुई है। इनसे जानते हैं कि क्या हुआ था। दादा, क्या हुआ था? कल के रात्रे আমরা 3টা নাগাদ একটা আওয়াজ পাই। তো কি হঠাৎ করে একটা আওয়াজ হচ্ছে, তো আমরা বাইরে একটা লাইট জ্বালানো দেখতে পেলাম যে বাড়ির এখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে এবং তার হাতে একটা ধারালো অস্ত্র, মানে লাঠি টাইপের। তো তখন আমরা বেরোই সবাই মিলে, তো হলে চলে বলি যে চোর এসছে বলে। তো তখন আসলাম প্রথম দোকানের তালাটা খোলা। প্রথমে আমরা দোকানটা ফলো করলাম, দেখলাম দোকানে অলরেডি আমাদের টাইমিং কি ছিল? রাতে 3টা নাগাদ। তিনটা। আপনি কি করে জানতে পারলেন? আমি তো ঘুমোচ্ছিলাম, নর্মালি আওয়াজ হচ্ছিল, মানে আমার গোডাউনটা আমার ঘরের পাশে, একটু স্লাইডলি আওয়াজ হচ্ছিল। হ্যাঁ, এটাই আমার গোডাউন। আমি একটা আওয়াজ পেলাম যে এরকম আওয়াজ, ফ্রিজের আওয়াজ হচ্ছে কেন, এই রাত্রে তো ফ্রিজ কেউ খুলবে না। তো আওয়াজ পেয়ে আমরা সন্দেহ করে লাইটটা জ্বালানোর সাথে দেখতে পাই, এটা গোডাউন? হ্যাঁ, ওটা আমার গোডাউন। লাইট জ্বালানোর সাথে দেখতে পাই যে উঠানে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে, মানে কিছু বলতে একজনকে আমি দেখেছি। সেই দেখে আমি চোর নাগাদ চোর বলে চিল্লানোর সাথে সে আমার পাঁচিল টপকে পালিয়ে যায়। তারপরে দেখলাম যে দোকান থেকে আরেকজন সে পাঁচিল টপকে সেও পালিয়ে যাচ্ছে। সে তার হাতে কিছু ছিল না, খালি পকেটে কিছু জিনিস ছিল। তো দোকানে এসে দেখতে পেলাম যে আমার একটা অলরেডি ব্যাগ সে রেডি করেছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তার মধ্যে আমার সমস্ত দামি প্রোডাক্ট, কাজু কিশমিশ, কিছু সিগারেট আর কিছু কয়েন ছিল আমার দোকানে, আর অল্প কিছু নোট ছিল, আর প্লাস কিছু ডকুমেন্টস ছিল, আর 2-3টা মোবাইল। তো এই নিয়ে সারা পালানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু জিনিসটা সারা নিতে পারেনি। আর জাস্ট নেওয়ার মতো 2টো খালি ফোন নিয়ে গেছে। তো তখন তারা আশেপাশে, আমি সবাইকে চিৎকার করে উঠাই দিই যে সবাই যেন উঠে যায়। তো তারপরে উঠানোর পরে সবাইকে আশেপাশে বললাম যে 2টো চোর এসছে, কারো না কারো বাড়িতে লুকিয়ে আছে, একটু দেখুন। তো সবাই দেখতে আমরা 1 ঘন্টা নাগাদ তাদের ছানবিন করতে তাকে একটা বাড়ির বাথরুম থেকে বের করেছি, একটা চোরকে। তারপরে আমরা পুলিশকে ডেকে পুলিশের হাতে তাকে তুলে দিই। মানে একটা চোর ধরা পড়েছে? একটা চোর ধরা পড়েছে। টোটাল কত চোর ছিল? আমরা এখানে 3 জনকে দেখেছি, 2 জনকে একদম আমার বাড়ির ভিতরে ঢুকতে দেখেছি, আর একজন বাইরে ছিল। আর আরও কেউ ছিল, কারণ আমাদের এই পাড়া থেকেই আরও অন্য 2টো বাড়ির পরে, মানে 2টো রাস্তা গলির পরে একটা বাড়ি থেকে টোটো চুরি হয়েছে একই সেম টাইমে। প্লাস আমার পিছনের রাস্তা থেকেও একটা বাড়ি পুরো ছানবিন সব কিছু চুরি হয়েছে, প্লাস একটা মুদিখানা দোকানও চুরি হয়েছে। একই সাথে একই টাইমে সবে হবে না। তো এখানে কিছু আরও 4-5 জন হয়তো এসে এই কাজগুলো করেছে। আপনি কত সামান নিয়ে গেছে? আমার এখান থেকে আমাদের যেটা নিতে পারিনি সেটা 20-25 হাজার টাকার জিনিস তারা ব্যাগে ভরেছিল, নিতে পারিনি। কিন্তু নিয়ে গেছে আমার 2টো ফোন, আর কিছু খুচরো পয়সা, আর কিছু নোট। মোটামুটি অ্যাপ্রক্স আমার 3-4 হাজার টাকা মাল নিয়েছে। এই সামানটা প্যাক করেছিল সেটা এখানেই ছেড়ে চলে গেছে? হ্যাঁ, সেটা নিতে পারিনি। আর আপনি এক চোরকে ধরেছেন? একটা চোরকে ধরেছি আমরা। আমরা সেটাকে ভক্তিনগর থানার কাছে, পুলিশের কাছে থানাতে এফআইআর হয়েছে? হ্যাঁ, এফআইআর করেছে বলতে আমরা সকালে গিয়েছিলাম। তো যাই হোক, তাকে তো অলরেডি মনে নিয়ে গেল পুলিশ। আমাদের সাথে বলেছে পরে খোঁজ খবর নিয়ে আর কোথায় চুরি হয়েছে এগুলো জানাতে বলেছে থানায়। ঠিক आ रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने बताया कि मिठू दा ने कि सीसीटीवी कैमरा भी था इनकी दुकान में जो उन्होंने तोड़ दिया है। सीसीटीवी कैमरा है जो चोरों ने तोड़ने का प्रयास किया। साथ ही देखिए, ये रड भी चोरों के द्वारा ही, चोरों के पास से ही बरामद हुई है, जो कभी भी इसे हथियार के रूप में चोर इस्तेमाल कर सकते थे। तो लगातार एक ही मोहल्ले में 4-5 घरों में चोरी होना, और साथ ही जैसा कि बताया एक टोटो को भी चोर लोग अपने साथ ले गए। चलिए दूसरे घर में चलते हैं जहाँ पर चोरी हुई है, वहाँ जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ था। तो इस चोरी की घटना को लेकर पूरे शरत चंद्रपल्ली में तनाव का माहौल है। लोग जो है रोष में है, और
जानना चाह रहे हैं कि आखिर कितना साहस हो गया है चोर लोगों का कि एक ही रात में 5-5 घरों में चोरी कर देते हैं और टोटो तक को उठा के ले जाते हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, बहुत से लोग इनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं काकू, की नाम আপনার? আমার নাম বিনয় রঞ্জন সরকার। কি হয়েছিল? এর আগে এখানে টুকটাক চুরি টুরি হতো, ছিচকে চোর যেটাকে বলে, আমরা চলতি কথায় বলি। কিন্তু কাল রাত্রে যেটা হচ্ছে একটা ভয়াবহ, একই রাত্রে আপনার 2টা-2:30 থেকে আরম্ভ করে 4:30টার মধ্যে 5টা বাড়িতে চুরি হয়েছে, তালা ভেঙে। এবং সবচেয়ে অদ্ভুত সিস্টেম হচ্ছে বাইরে 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 থেকে বেঁধে দিচ্ছে যেন ভিতরে লোক বাইরে না আসতে পারে। তো এই বাড়ির বৌদি, ওই বাড়ির বৌদি এরা যখন চেঁচালো তখন 3টা আমি দৌড়ে উঠলাম, আরও পাড়ার সব লোকজন উঠলো, যে ধাওয়া করে ওই এক বেটাকে ধরা হলো। তারপরে পুলিশ ডেকে পুলিশকে হ্যান্ড ওভার করা হয়েছে। এখন লোকে তটস্থ হয়ে গেছে, ভয়ে থাকতে পারছে না বাড়িতে। এর আগেও কি এরকম কোনোদিন ঘটনা হয়েছে? কোনোদিন এরকম ঘটনা ঘটেনি। ওই ওই বালতিটা নিয়ে যাচ্ছে, খালি 3-4টা নিয়ে যাচ্ছে। 6-7 মাস আগে সেম একইভাবে হয়েছিল। সুব্রত কর এর আগে আমার বাড়িতে আজকেও হয়েছে। আজকে রাত্রেবেলা কি মানে আমি যে রুমে থাকি, বাকি রুম দুটোকে বাইরে থেকে লক করে দিয়েছে। যে চোর ধরা পড়েছে ও কিছু বলেছে না, ও তো কিছু তেমন কিছু বলেনি। ওকে আগে কোনোদিন এই এলাকাতে দেখিও নি আগে কোনোদিনও। বাইরের বলছে, বাইরে নাম বলছে সে বারবার যে আমাকে বাপি বলে একজন পাঠিয়েছে, এর কিছু আর বলছে না। বললো আমি তো চুরি করিনি, ব্যাগটা রীতিমতো আমি চোর চোর বলাতে রেখে চলে গেছি, তো আমি চুরি করিনি এটাই বলে যাচ্ছে, যে আমাকে বাপি পাঠিয়েছে, যা বাদ বাকি জিনিসপত্র আছে সব বাপির কাছে আছে, আমার কাছে কিছুই নেই, এটাই বলছে। কাকু আপনারা কি থানাতে এফআইআর করেছেন? আমরা এফআইআর করেছি, পুলিশ এসেছিল। তো সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে পুলিশ ইন্টারোগেশনও করেছে, কিন্তু ও যা স্টেটমেন্ট দিচ্ছে যে আমার বাড়ি হচ্ছে ইসলামপুর এবং আমার সঙ্গে যারা ছিল তার সব ইসলামপুরে। আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না এই জন্যই, ইসলামপুরে একটা লোকের পক্ষে কোন বাড়ির গেট কোথায় আছে, কোথায় তালা আছে, জানবে কি করে? আমার বাড়িতে আজকে হয়েছিল যেরকম দরজা খোলা চেষ্টা হয়েছিল, নিচে পাথর ঢুকিয়ে দিয়েছিল। যেহেতু বক্সটা নিয়ে চলে গেছে, ডিভিডি বক্সের পুরো বাড়িটা আর্থিং করছে। এটা কি করা হয়েছে না কিছু কি করলে সেটা বুঝতে পারছি না, পুরো বাড়িতে আর্থিং মারছে। আমরা কারেন্টের লোক আনিয়ে ঠিক করা হয়েছে। আমার এখানে হয়েছিল আজকে যে দরজাটা, আমার যে রুমে থাকি, দরজাটা নিচে থেকে উপরে থেকে লক করা ছিল ভেতরে। তো নিচে দিয়ে লক করা ছিল না, তো নিচে থেকে অনেকটা মানে একটা হাত ঢোকার মতো জায়গা করে এবার ওটা দিয়ে নিচে একটা পাথর ঢুকিয়ে দিয়েছিল যাতে দরজাটা রিটার্ন বন্ধ না হয়ে যায়। করার পরে এবার ওরা করেছে কি, ভিতর থেকে ডাকা, আমার পাশে থেকে ডাকছিল, তো সেখান থেকে টর্চ মারা হচ্ছিলো, চোখে মুখে কন্টিনিউ টর্চ পড়ছে বা ঘরের ভিতরে টর্চ। তারপরে যে আওয়াজ করা আছে, তারপরে হঠাৎ করে দৌড়ানোর আওয়াজ পেলাম, দৌড়ানোর আওয়াজ তখনই চলে গিয়েছে। কিন্তু এই ঘটনাটা সেম একইভাবে আগের বারও অন্য দুটো রুম বন্ধ করে সামনে যে রুম আছে, আজ থেকে 6-7 মাস আগের ঘটনা, তখনও এই সেমভাবে এই কাজটা করা হয়েছিল। কিন্তু তখনও আমরা কোনো স্টেপ নেওয়া হয়নি, তারপর আর কিছু শুনিও নি। আজকেরটা একটু বেশি হয়ে গেল, 5-6টা বাড়িতে। 3 দিন আগে ওদিকে একটা বাড়ি থেকে একটা পিতলের সিংহাসন সেটা চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। মানে মাঝে মাঝে চুরি হতে থাকে, কিন্তু 2-3 দিনের মধ্যে হচ্ছে এটা। এই কিছুদিন হলো অত্যধিক বেড়ে গেছে, অত্যধিক। আগে মাঝে সাঝে বেশি রাতে পুলিশ এসে টহল দিত, আজকাল তো ওসবের কোনো কারবার নেই। এখন কিছু নেই ওগুলো। আমাদের এই গলিতে বসে থাকে, নেশা টেশা করে ছেলেপেলে, লাইট নেই আমাদের গলিতে, যার জন্য আরো অত্যাচারটা বেশি হচ্ছে। মেয়ে ছেলে মানুষ আসতেই পারছে না দিক দিয়ে। স্ট্রিট লাইট নেই, স্ট্রিট লাইট আছে গলিতে নেই, গলির ভিতরে, পুরোই অন্ধকার। আর এখানেই ছেলেপেলেগুলো সন্ধ্যা হলেই বিড়ি সিগারেট নিয়ে, বোতল নিয়ে, দারু বোতল নিয়ে সব বসে আছে, যার ভয়ের চোটে কেউ আসতে পারছে না, মহিলা মানুষ ভয় পাচ্ছে, খুব অসুবিধা হচ্ছে। লাইট হলে পরে আমাদের এখানে খুব ভালো হতো ওইগুলিতে। क्या हुआ, क्या होता है, आप बोल रहे थे यहाँ पर? इधर तो इसके बाद एक हफ्ता पहले आया और सब ड्रेस बस लेके आ गया कि वो पिताजी मर गया। हाँ ठीक है, घूम के आके फिर एक बार में गहना गाड़ी सब चुरा के ले गया। एक दिन गया, फिर एक दिन आया इधर, घर में घुसा, दबर खा के भाग गया। यहाँ पर चोरी होते रहता है? जो होते ही रहता है, ये कॉलोनी है तो कॉलोनी में 2-3 बार हो गया, आज 4 बार हो गया। शरद चंद्रपल्ली है ये? नहीं, ये तो शरदचंद्रपल्ली। हाँ, शरदचंद्रपल्ली 40 नंबर वार्ड। 40 नंबर वार्ड। हाँ, शरदचंद्रपल्ली 40 नंबर वार्ड। आप तो सब्जी बिक्री करता है तो सब जगह जाता होगा, तो आपको मालूम है ये बात? इधर तो ज़्यादा होता है, इधर तो 1 महीना से तो 2-3 बार आ गया। हम तो हाँ 2-3 बार हम सोला, आज भी इधर दुकान वाला का देखिए यहाँ पर भी चोरी हुई है, इन घर में भी ये लोग बता रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि लगभग 5 घरों में चोरी हुई है। और यहाँ पर देखिए बुजुर्ग महिलाएं हैं, ये बता रही है कि इनके घर में चोरी हुई है। क्या है पूरा मामला? एक गेट है,
गेट का ताला खुला भांगा। आइए ना, इधर आइए। ये आपका दुकान है? ये हमारी दुकान है, दुकान का ताला तोड़ा है। अच्छा। और इसका ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, तो इसको बाहर से बंद कर दिया। बाहर से बंद कर दिया। देखिए ये एक नई यहाँ तकनीक चोर अपना रहे थे कि दुकान का ताला भी तोड़ रहे थे, जैसे बता रही काकीमा। और ये इस तरह से बाहर से दरवाजा, जितने भी घरों में वो गए उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, जिससे कि अगर अंदर आवाज़ भी जाती है तो अंदर के लोग आ नहीं सके, चिल्ला नहीं सके और उन्हें या तो चोरी करने का पूरा मौका मिल जाए या बाहर भागने का पूरा मौका मिल जाए। देखिए ये यहाँ इस गेट को तोड़ के गए हैं चोर, उन्होंने तोड़ा है। एक गेट का ताला है और दुकान का ताला है, तो दोनों तोड़ा, दोनों तोड़ा। दुकान और गेट दोनों का ताला तोड़ा है। हाँ, तो फिर अभी इसको भरा। आप क्या क्या लेके चले गए? हम बता रहे बात इधर में अभी भरा ये। तो इसको मेरे गुटका था, राजनिवास, बाहर, शेखर, তারপরে इसे दिलडुबा ये था, ওগুলো डाल डाल के ले गया। और ऐसे नेवी कट का ऐसे एक बंडल होता है ना पूरा, सिगरेट का इधर में था, उसको ले गया। और बिक्री करने के लिए इधर में थोड़ा थोड़ा सजानो था सिगरेट, वो भी पूरा ले गया। और इसमें रजनीगंधा था, उसको भी ले गया। और ये डब्बा में इसको तो इधर में पूरा फेंका, ऐसे ऐसे फेंक के रखा, ऐसे ऐसे फेंक के रखा। उसको टाका था ले गया, कैश में 100 टाका था, वो भी ले गया। आपका नाम क्या है? हमारा नाम जयंती शाह। जयंती शाह। तो देख सके दर्शकों कितना दुख की बात है। 2 साल गुजर, हम थोड़ा बहुत खोलता हूँ दुकान बैठ बैठ के, आदि के ऐसे सामान पूरा चोरी करके ले गया। तो देखिए कितनी दुख की बात है। बुजुर्ग महिला जो कि विधवा महिला है, वो किस तरह दुख पाकर छोटे छोटे सामानों को बेचकर अपना गुजारा करती है और उन्हें चोरी का सामना करना पड़ा। उनके दुकान में चोरी हो गई, उनकी आंखों में आंसू है और उनका कहना है कि वो किसी तरह 150 रुपया कमाती है और उस पर चोरी अगर ये अंजाम होती है तो इनकी क्या हालत होगी आप देख सकते हैं। एक ही रात में 5 घरों में चोरी ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। लगातार हम दिखा रहे हैं, आपने देखा किस तरह बुजुर्ग महिला रो रो कर अपने दुख का बयां कर रही थी कि वो छोटी सी पूंजी लेकर व्यापार कर रही और उसे चोर लोग लूट के ले गए। और ठीक इसी तरह और एक घर में आ गए। यहाँ पर ये सामने घर है, जो लोग घर से बाहर गए हुए हैं उनके घर में चोरी हो गई है, उन्हें नहीं मालूम है, लेकिन जो सामने लोग रहते हैं प्रत्यक्षदर्शी है उनसे बात करते हैं। क्या होता? कल रात लगभग 4:30-5 बजे हम, माय नेम इज रूपा पॉल। रात लगभग 4:30-5 बजे हम सब सो रहे थे, हठात उठकर देखी कि यहाँ पर ताला जो थे तोड़ कर रखा हुआ। तो फिर अंदर गए, देखिए सब लूटपाट करके सब लेके चले गए। तो फिर पुलिस आया, मेरा जो घर है इसका, हम सब अंदर थे लेकिन बाहर से चोर लोग ने रस्सी बांध लिया। आप लोग घर को भी रस्सी से? हाँ, बाहर से बांधा हुआ था। शुरू से आपको एक बात बता रहे हैं कि चोर लोग जब जहाँ जहाँ उन्होंने चोरी को अंजाम दिया, वहाँ जिस घर में चोरी की उस घर में भी, और साथ ही जो सामने के घर थे उनका घर का और अगल बगल के घर के जो दरवाजे थे उन्हें बंद कर दिया या फिर रस्सी से बांध दिया, जैसे ये प्रत्यक्षदर्शी लड़की ये बता रही है। हाँ, तो आपका घर भी बाहर से बंद था? हाँ, तब आसपास से लेकर फिर हम निकले बाहर, आसपास के लोग आकर खुले, फिर हम निकले बाहर, तब देखे कि यहाँ पर ताला चोरी कर चला गया। आप जब शोर सुना तो आप बाहर निकले देखे गेट बाहर से बंद है। हाँ, तो नहीं निकल पाए। फिर सब कोई घुसा अंदर, जाके देखा सब उलट पलट, बिस्तर सब उलट पलट था, सब कुछ। सब कुछ ये मतलब घर वाले यहाँ पर है ना? नहीं है, बेटी का घर में है, एक ही है आंटी, बेटी का घर में है। अच्छा, बेटी घर में? हाँ, बेटी का घर में है। हाथ में रहता है, उनका हाई प्रेशर है तो बीमार है, इसलिए बेटी का घर में रहती है। अच्छा, कभी भी इतना साल में चोरी यहाँ से क्या ले गए होंगे? कुछ चोरी का सामान, कुछ आइडिया आप लोग का? आइडिया नहीं है, अभी आंटी आएगी तो भी बोलेगी। हाँ, क्या घर में रखा था तो वही जान सकती है। जान सकती না বললো কিছু টাকা ছিল पैसा भी तो था আর ना, এই জিনিসপত্র কাঁসা পিতল ছিল, ওইটাই চুরি করলে। पूजा का सामान भी था ना, পূজার কার সামান ছিল, ওগুলো সব লেগে গেছে। तांबा का बर्तन उर्तन होगा, कांसा का, पीतल का। यानी अभी आइडिया नहीं है कि क्या इसमें चोरी हुई क्या नहीं हुई, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि एक ही रात में जो हैदरपाड़ा की शरत चंद्र पल्ली है वहाँ पर 5 घरों में चोरी होती है। चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं और यहाँ तक एक टोटो को लेके भाग जाते हैं और आसपास के घर जो थे उन्हें बाहर से बंद कर देते हैं, जिससे कि लोग बाहर न निकल सके, उनको न पकड़ सके। लेकिन चोर कितने ही चालाक क्यों न हो, एक गलती कर ही देते हैं और इसी कड़ी में एक चोर उनके बीच से
पकड़ में भी आया है। जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया, एक चोर पकड़ा गया है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो करने के बाद कॉल किया था, वो कॉल करके बोला हम लोग पायल मोड़ में आ गए हैं, तुम लोग आओ। फिर पुलिस गया उसको लेके, एक साथ ही पकड़ा गया और सब आ गया, सब आ गया एक साथ ही। उसको लेके कॉल करवाया पुलिस, तो बोला हम लोग पायल मोड़ में है, तू भी आ जा। तो पुलिस वहाँ से कॉल करके बोला थाना में। और भी पकड़ा गया क्या चोर लोग? नहीं, और नहीं पकड़ा गया, पता नहीं। उसके बाद तो पुलिस चला गया, उसके बाद कोई खबर नहीं तो है। आप लोग बता रहे थे कि आपके घर में भी कुछ दिन पहले यहाँ पर हाँ हाँ, और मेरा भैया का शादी के कुछ दिन बाद चोरी हुआ था। दिन में जैसे मम्मी, दिन में ऐसे जैसे मेरा मम्मी और भैया भाभी गया था अन्नप्राशन में, और हम और मेरा भाई काम पे गया था। 1:30 बजे ताला लगा हुआ ही था गेट पे, लेकिन अंदर जाके देखा सब कुछ तोड़ के सब कुछ लेके गया। बर्तन जितना भी हम लोगों को गिफ्ट मिला था, सोना रूपा सब भी। इधर अक्सर चोरी होते रहती है। कल बहुत सारा चोरी एक साथ आया एक साथ में बहुत गैंग आया था, और हर जगह एक एक करके चप्पल, दारू का बोतल ये छोड़ छोड़ के गए। हाँ, हर गली में मतलब निशानी छोड़ के गए। हाँ, निशानी छोड़ के गए। हाँ, चप्पल छोड़ के गए। तो बड़े अजीबोगरीब वाक्यांश है यहाँ पर। आपसे बताएं कि कहीं इनका कहना है कि कहीं चप्पल छोड़ के चले गए चोर, तो कहीं दारू की बोतलें छोड़ गए, और कुछ तो कह रहे कि कई घरों में गंदगी भी करके चले गए। तो ये क्या बात होगी इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते कि बहुत ही चिंता की बात है। और ये जो इलाका है शरद चंद्रपल्ली इलाका, यहाँ के स्थानीय लोग का कहना है कि अक्सर यहाँ पर चोरियाँ होती रहती है, और पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ ही आपसे ये भी बता दें कि ये इलाका जो देख सकते हैं कि पतली पतली गलियों का इलाका है, और गलियों में लाइटिंग की भी काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से भी एक वजह हो सकती है कि असामाजिक तत्वों को इस तरह के कार्यों को अंजाम देने का मौका मिल जाता है। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।